Once again, farmers are back on roads, this time in Haryana. I'm standing at NH44, which is the Delhi-Chandigarh highway, Delhi-Ambala highway, and also Jammu highway. And this particular highway has been blocked by farmers because they have some demands from the state government, specifically in Haryana. And they are saying that till the time their demands are not fulfilled, they'll not be calling off their protest that they have called here on this particular road. You can see the mattresses and also behind me the visuals where you can see the tents and a large gathering of farmers there. You can see this is NH44. However, farmer leaders are at this point in time saying that they haven't blocked any road, but this is quite visible that how the traffic, if I can ask my VJ Arpit Seth to show you the visuals, traffic on both the sides is blocked, and in fact no one is allowed to come on this particular road. In fact, straight from Karnal, if you are coming from Delhi, straight from Karnal, you'll start seeing the long lines of trucks and also cars. Some of the travelers are taking alternate routes. However, many of them don't know about the route, and that's why they are forced to wait on the particular highway. This is NH44. Towards this side you have Delhi, and on the other side you have Ambala, Chandigarh, and also Jammu. This is one of the main highway that connects Chandigarh, Ambala, and important cities like Karnal and Kurukshetra to the national capital. Last year we saw that how for the farm laws, farmers set on Singhu border, Ghazipur border, and also one other border in Delhi. However, at this point in time, they are saying that this time, this is version 2 of their protest where they are demanding for MSP, minimum support price for sunflower seeds, specifically at this point in time in Haryana. And also they have some demands for Haryana police, saying that you have to release all those leaders and all those protesters who were taken into custody on 6th of June because of their protest on the MSP. Once again, if I can show you the visuals, there you see a large gathering where all these farmers are basically waiting for some sort of assurance from the state government, because at this point in time they have only two demands. First one is MSP, and the second one is release of their leaders who were taken into custody. This is NH44. While we had a word with Rakesh Tikait, so he denied that he hasn't blocked, or he or his supporters haven't blocked NH44, but this is quite visible in the visuals. You can see at least 400 to 500 meters, and you won't be able to see any sort of vehicle coming or going from this particular road. This is probably because of the particular protest. In fact, these tents and mattresses you can see, this is somewhere showing you the actual image of the particular protest. And farmers are saying that either you fulfill our demands or just come to this place and arrest us, because otherwise we won't be going away from this particular road, and we will continue our protest on this very same place till the time our demands are not fulfilled. Joining me now is Rakesh Tikait, and I'll try to find out as to what is the reason behind protest this time. राकेश जी, आप मुझे बताइए, दोबारा से लग रहा है कि आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं किसान, क्या कारण है? एमएसपी पे आंदोलन तो देश में होगा, बिजली के इशू पर होगा, जमीन अधिग्रहण पर होगा। तो अभी जहाँ जहाँ के इशू चल रहे हैं, लोग वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। आप आज यहाँ पर बैठे हैं कुरुक्षेत्र में,
इसका क्या, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि तमाम जो मांगे हैं एमएसपी को लेकर, आपने बात कही एमएसपी को लेकर आप मांग हैं, आपके साथ ही कुछ पुलिस की कस्टडी में उनकी रिहाई को लेकर आपकी मांग थी, अल्टीमेटम भी दिया था, क्या कुछ मौजूदा स्थिति है, अभी क्यों बैठना पड़ रहा है राकेश टिकैत को यहाँ पर? अभी जो सूरजमुखी की एमएसपी है उस पर खरीद नहीं हो रही, और वो रेट वो है जो देश के प्रधानमंत्री ने रेट दिया है, भारत सरकार का रेट है, स्टेट गवर्नमेंट का रेट है, उस पर खरीद हो। जो लोग खरीद के आंदोलन में जेल गए हैं उनकी रिहाई हो। ये दो डिमांड अभी यहाँ की है, हरियाणा की। तो बात हुई है प्रशासन से, आपकी सरकार से कोई बातचीत हुई है, क्या कुछ आश्वासन आप लोगों को? 3-4 बार की बातचीत लोकल कमेटी से हुई है। हाँ। अभी कुछ समाधान तो नहीं निकला। अभी समाधान नहीं नहीं निकला। रात 10 बजे तक का, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अल्टीमेटम या कुछ ऐसा भी आपने कहा था वो कि कहा था बिल्कुल आपस में हाँ, कि 10 बजे तक सरकार दे, तो कुछ उनकी तरफ से आया होगा कि नहीं कुछ पॉजिटिव वो है, ठीक है। लेकिन उसका रिजल्ट आना चाहिए। हाँ, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। अभी तक नहीं है। तो क्या अब आगे की राह होगी, क्या फिर से कहें कि दिल्ली के बॉर्डरों तक किसान पहुंचेंगे, या क्या कुछ आगे की राह है? अभी उस तरह का तो मूवमेंट अभी नहीं है, उस तरह की ना अभी तैयारी है, लेकिन देश में एमएसपी के सवाल पे बड़ा आंदोलन देश में होगा। ठीक है साहब, अभी देख रहे हैं हम पीछे आपके समर्थक भी हैं और लोग पहुंच भी रहे हैं लगातार, क्या कुछ संख्या बल है, क्या आपने और किसानों से आह्वान किया है कि यहाँ पर पहुँचें? जैसे जैसे जरूरत होगी तो उस हिसाब से लोग आ जाएंगे। नहीं, लेकिन NH44 का मामला भी, मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था कि आप कह रहे थे कि हमें तो गाड़ी चलती हुई दिख रही है ना, NH44 का मामला भी लोग उठा रहे हैं कि ये जो पूरा रास्ता है ये बंद कर रखा है, आप लोगों ने बंद किया है। हमने तो नहीं बंद करा, पुलिस ने बंद करा, हम तो बंद करते ही नहीं। कोई आदमी खड़ा हो रास्ते में तो बताओ, यहाँ तो जो गाड़ी आती है वो निकल जाती है। अच्छा, हम लोग भी, जैसे मैं आया हूँ दिल्ली से तो मैं घूम के आया हूँ। नहीं, क्यों आए घूम कर, तो सीधा रास्ता चल रहा है। सीधा रास्ता चल रहा है। क्या आने वाले घंटों में या आने वाले दिनों में आप लोगों की ओर से ऐसा कोई इशारा है कि इस रोड को? प्रशासन और सरकार किसानों को बदनाम करने के लिए और पूरी जो एनर्जी उनकी है टीवी चैनल के माध्यम से उस पर ले जाना चाहती है कि किसानों ने रास्ते बंद कर रखे। चैनल ये नहीं दिखाता कि भारत सरकार का जो रेट है उन्होंने रेट डिसाइड करा और स्टेट गवर्नमेंट या उसको भारत सरकार नहीं उसको दे रही, सिर्फ रास्तों को और वो दिखाई देता है, लेकिन जो किसान का रेट है या गन्ना भुगतान है किसान का या दूसरी फसलों के रेट है, जो मक्का है उसके रेट है, वे आधे रेट में किसान अपनी फसल बेच रहा है, वो दिखाई नहीं देता। मैंने आपसे सवाल किया कि आगे का क्या रास्ता है, और उसी सवाल को थोड़ा सा अगर आगे बढ़ाऊं तो क्या कहें कि उस दिशा में आंदोलन बढ़ रहा है ये कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो जेल तक भी जा सकते हैं, या हमने तो इनको कहा भाई रास्ते खोलने के दो ही तरीके हैं, या तो एमएसपी उन किसानों की रिहाई, और या यहाँ पे प्रशासन आए और कहें कि हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं तो रास्ता खाली करो, तो हम गिरफ्तारी देंगे। गिरफ्तारी देने को तैयार हैं। आज अगर मैं शाम तक की बात करूं तो क्या मान के चल रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि आएगा, आप लोगों से बातचीत करेगा? नहीं, बातचीत तो कल भी हुई थी, और लोकल जो संगठन है हमारा वो बातचीत कर रहा है, उसके सार्थक रिजल्ट निकलने चाहिए। एक लंबा आंदोलन हमने देखा, इसको अगर मैं रैप करूं तो लंबा आंदोलन हमने देखा, और आप लगातार बैठे हुए थे यूपी गेट पे दिल्ली में, हमने देखा लगातार हमारी बातचीत हुई आपसे, उस समय भी एमएसपी को लेकर तमाम तरह के आश्वासन दिए गए। आश्वासन की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, भारत सरकार ने 12 दौर की बातचीत में कभी भी एमएसपी पे कोई सवाल किया ही नहीं, न उन्होंने कोई उस पर बात की। उन्होंने कहा कि 3 कानूनों पर हम पहले बात करेंगे और उसके बाद में एमएसपी को हम सेकंड उस पर लेकर जाएंगे। तो एमएसपी का जो सवाल है वो 3 कानूनों से भी बड़ा सवाल है, उसके लिए एक बड़े आंदोलन की जरूरत देश में पड़ेगी। तो अभी अगर हम मान लें कि आप इंतज़ार करें सरकार का कि या तो हमारी मांगे माने या हम लगातार आंदोलन करते रहेंगे ऐसे ही, सही है? तो बिल्कुल सही है। कहाँ से जाएंगे? किसान छोड़ कर नहीं जाएगा यहाँ से, या तो डिमांड पूरी होगी या ये किसान जेल जाएगा। Alright, so either fulfill our demands or we are ready to go to jail. This is what Rakesh Tikait is saying as of now.
farmers are basically sitting at this particular place in Kurukshetra, basically demanding for the MSP and also for the release of their leaders who were taken into custody on 6th of June. With video journalist Arpit Seth, this is Akash Sharma for CNN News 18.